थोड़ा आवाज दे। हेलो The Central Industrial Security Force came into existence in the year 1969 as a specially trained force for providing security cover to public sector undertakings. CISF has been one of the most sought after and efficient forces among all the Central Armed Police Forces. Our Honorable Principal, Shri Saroj Khan Malik, DIG FSTI, has just arrived. ने प्राचार्य महोदय को गुरु दक्षिणा स्वरूप जनरल सैल्यूट से सलामी दी। Shri Saroj Khan Malik, DIG, Principal FSTI,
joined civil services as a Group A officer in the year 1992. He rendered his exceptional services in the Special Protection Group as a Senior Security Officer from 1998 to 2007 and from 2007 to 2008 as an Assistant Inspector General, SPG, Cabinet Secretariat, New Delhi. As Group Commander, he headed the 12 Special Rangers Group at NSG Manesar from 2011 to 2015. His core competency in VVIP security, SPG, SSG, NSG in India and overseas, counter-terrorism, aviation security, operational research, training and operational capacity building, industrial security, security audit, administration and human resource management. Shri Saroj Khan Malik holds a MPhil in International Politics from the Jawaharlal Nehru University, Delhi. He has the credit of handling various important assignments. He's executed various security operations for former Prime Ministers, Chief Ministers and other highly threatened functionaries. He has executed VVIP tours, high profile of VVIP events in India and abroad as commander of the Close Protection and House Protection Team. Being posted as DIG, Principal CISF RTC Devli from 2015 to 2019, he made history by imparting basic training to more than 5,400 constable trainees at one go. This feat has been recognized by the Limca Book of Records too. Shri Saroj Khan Malik is the recipient of the Indian Police Medal for Meritorious Services in 2014 and has received appreciation and recognition on various occasions from the President of India. सीआईएसएफ का ये मनोरम परिसर सभाओं समारोह के भव्यता के अनुरूप ही अलंकृत है। सभी बल सदस्यों के मन में अपने मुख्य अतिथि महोदया के सत्कार की उत्कृष्ट अभिलाषा एवं उनके दिलों में अदम्य उत्साह कि देश को इस बल The parade paid compliments to the chief guest by presenting a general salute, and the parade commander is marching towards the dais to give his report to the chief guest. जय हिंद महोदया। दीक्षांत परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है महोदया। जय हिंद महोदया। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदया को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदया माननीय श्रीमती अंजना सिन्हा IPS डायरेक्टर निसा निरीक्षण वाहन में सवार हैं। उनके साथ है श्री सरोज कांत मलिक DIG FSDI तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरक्षक अग्नि प्रशिक्षणार्थी मुकुल त्यागी। Srimati Anjana Sinha, IPS, joined the Indian Police Service in 1990 and was allotted the Andhra Pradesh Police Communications Organization, CID, Economic Offences Wing and Welfare in Telangana State.
After bifurcation of the state, she served as IG Technical Services in Andhra Pradesh and in promotion as ADG NCIs. किसी भी जवान के लिए परेड निरीक्षण रोचक होता है जब परेड के जवान अपना निरीक्षण करवाते हैं। मुख्य अतिथि से तस्वीर होते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और गौरव भरा क्षण होता है। निरीक्षण वाहन कंपनी नंबर 2 के समक्ष कंपनी नंबर 3 की बागडोर संभालेंगे आरक्षक अग्नि प्रशिक्षणार्थी करण कुमार। कंपनी नंबर 4 नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक अग्नि प्रशिक्षणार्थी सोमदेव। आरक्षक अग्नि Company number 6 is led by Council Fire Abu Rahman. Company number 7 is led by Council Fire Rose Chelmuri. 8 Company is led by Council Fire Balasat Nandori. Company number 9 Council Fire Rajesh Kasri. Last, the 5th Company is led by Council Fire Rashmi Sahu. The colorful band of CSF Fitness team in the middle of ceremonial parade ground with the command of ASA Executive Mohammad Shahul. Srimati Anjana Maxwell School, Syracuse University, New York, and has also attended the Wilton Park Conference in UK as an invitee and presenter in the Colloquium on Human Security in 2004. She was a visiting member to the Center of Advanced Studies, निरीक्षण वाहन पुनः मंच के समक्ष पहुंचता हुआ जय हिंद महोदया। शपथ परेड शुरू करने की अनुमति प्रदान करें महोदया। जय हिंद महोदया। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से शपथ ग्रहण की आज्ञा ली और अब परेड कमांडर अगली कार्रवाई के लिए अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। दर्शकगण कृपया ध्यान दें, परेड ग्राउंड के बाएं छोर से राष्ट्रीय ध्वज टोली का प्रवेश होगा। राष्ट्रीय सल्यूट के दौरान कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज टोली परेड पर राष्ट्रीय सल्यूट सलामी। कमांडर जगाओ। राष्ट्रीय ध्वज टोली को कमांड कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशांत कुमार, जिनके हाथों में है राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज के साथ है सहायक उप निरीक्षक अग्नि नीरज।
ध्वजवाहक कार्रवाई शुरू कर। यही है वो गौरवपूर्ण क्षण जिसकी इन प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतीक्षा की। ओज से भरी राष्ट्रीय मजबूरी, अति पावन राष्ट्रीय शौर्य का परचम लहराता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ध्वज प्रशिक्षणार्थियों में जोश भरता। राष्ट्रीय ध्वज को स्पर्श करना प्रत्येक बल सदस्य के लिए महत्वपूर्ण, रोमांचक तथा गौरव भरा क्षण होता है। ये जवान किसी रोमांच को इस समय अनुभव कर रहे हैं। ये समय पूरी सेवा काल एक ही बार आता है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए अथक परिश्रम का अंतिम व सुखद पड़ाव है। इसी से इस शर्त की महानता तथा गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। आज तारीख जब राष्ट्रीय और बल स्पर्श इन प्रशिक्षणार्थियों के देश में और निष्ठा जज्बा पैदा करता। आज से ये प्रणबद्ध होगी कि ये अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, सच्ची निष्ठा और निष्पक्षतापूर्वक करेंगे। Today is a momentous day for them. After having completed the basic training, they are now taking oath under the national flag and the CISF flag. They've been trained by professionals with dedication and hard work. It has been impressed upon them to be calm and decisive while performing their duties in a courteous manner. मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालन करूंगा। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी परेड बहुत ही सुंदर तरीके से कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाते हुए बढ़ी चली आ रही है, अपने दृढ़ इरादों का और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए। इनकी दुरुस्त चाल, सही ताल में कदमों की आवाज ये दर्शाती है कि ये सभी प्रकार के खतरों से देश को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। परेड कमांड
डीवाईसी द्वारा मुख्य अतिथि महोदया का अभिवादन किया गया। कंपनी नंबर 1 प्रस्तुत कर रहे हैं आरक्षक अग्नि सिंह मौली। इनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 2 बागडोर संभाल रही है आरक्षक अग्नि राहुल चौधरी। कंपनी नंबर 3 अपना कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं आरक्षक अग्नि करण कुमार। मुख्य अतिथि महोदया का अभिवादन करते हुए कंपनी नंबर 3 आरक्षक अग्नि गोत्री। कंपनी नंबर 4 एक कार्टून कमांड। इनके ठीक पीछे कंपनी नंबर 5 कमांड कर रहे हैं आरक्षक अग्नि अंकुर राज। Company number 6 is led by Consul Mahmood Bhai. Company number 7, Second District of GPS by Consul Suresh Chandpur. Company number 8, the Technical Command of Consul Balasan Modi. Company number 9, Naval Command of Rajesh Kashyap. Last but not the least, the 10th company is paying the respect to the chief secrets and the command of Consul by Vishwajit Sahu. A beautiful march past is a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the force of the last few decades. The troops who fight the best do so not because of their nationality, but because at that specific time they're best trained, best disciplined and best led on the field. अनुशासन की सीमा में पंक्ति पर अपने साथी पर विश्वास, सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति है आपसी निर्भरता तथा टीम भावना के अति दुर्गम लक्ष्य को भी आसानी से साधी कला Soldiers can never rest till the nation is secure and its sovereignty and integrity uncompromised. The past excellent march past will bear testimony to the capability to work together, reach together, and meditation and interaction with eminent personalities. The values and professionalism imbibed in them during their training is definitely manifested in this parade. Inspired by a purpose, building bonds and transcending boundaries, these smartly dressed personnel of CISF carry with them in their hearts an indomitable spirit of victory. While they march ahead, they leave behind the footprints which echo the feeling that every unconquerable obstacle will be broken down to keep this nation safe and secure. To fight for a cause and to protect this country is a feeling they carry with their march. आकर्षक वेशभूषा, आंखों से झलकता आत्मविश्वास, होठ से दिव्य चेहरा, आस्था एवं
wing of CISF has specialized in advanced gadgetry system to fight fire and disasters caused by fire. Its foremost task is to impart basic level training to members in fire services all over India and also professional training to the regular recruits of the CISF Fire Service Wing. This institution also conducts in-service training courses for middle to senior level members of the force and officers from the state civil services. In the last 5 years, the specialized task force dealing with perils of fire attended to around 19,000 plus calls and saved properties worth 1,500 crores. In the year 2018, this wing responded to 3,200 emergency calls and saved property worth 765 crores from destruction. Today's passing out parade of the 28th batch of Constable Fire will add a new chapter to the high professional standards and impressive track record of CISF. बहुत ही मनोरम दृश्य, जोश से भरा मार्च पास्ट, फिर भी अनुशासन की मार्च पास्ट के बाद परेड मध्य सच की कार्रवाई करती है। समीक्षा क्रमांक मध्य से The parade paid compliments to अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गीत प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर गीत के प्रति सम्मान व्यक्त करें।
request our Honorable Principal, Shri Saroj Kant Malik, DIG, FSDI, to kindly deliver welcome address and the course report. श्रद्धेय मुख्य अतिथि श्रीमती अंजना सिन्हा, IPS निदेशक नीसा, उपस्थित राजपत्रित अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के सदस्यों, FSDI के प्रशिक्षक और मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं एवं उनके परिवारगण, आज मुझे अग्नि सेवा प्रशिक्षण संस्थान FSDI के प्रांगण में 28वें बैच के कांस्टेबल फायर की पासिंग आउट परेड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज कुल 604 फायरमैन पास आउट हो रहे हैं, जो इस संस्थान के इतिहास में सबसे बड़े बैचों में से एक है। CISF एक अखिल भारतीय बल है जिसमें देश के हर कोने के नागरिक चयनित होकर आते हैं। वर्तमान बैच में 26 राज्यों के प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। फायर काडर में CISF में भर्ती होने के बाद इन फायरमैनों को पहले CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मुंडली में 15 सप्ताह की सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जहां इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार प्रशिक्षण और अन्य सुरक्षा संबंधी विषयों पर सिखलाई दी गई है। इसके बाद ये कर्मी FSDI में 27 सप्ताह की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा के विशेष प्रशिक्षण के लिए आए, जहां उन्हें फायर काडर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यहां प्रदान किए गए प्रशिक्षण में अग्नि विज्ञान के मूल बातें, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, मोबाइल फायर इंस्ट्रूमेंट्स के परीक्षण और रखरखाव, हाजार्डस मटेरियल और गैसों, आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा, बचाव के तरीके और आपदा प्रबंधन आदि पर सिखलाई शामिल है। FSDI की स्थापना 1987 में देवली, राजस्थान में हुई थी और 1999 में नीसा, हैदराबाद में अपने वर्तमान कैंपस में स्थानांतरित हुआ। बेसिक, रिफ्रेशर और प्रमोशन कोर्सों के अलावा संस्थान अग्नि से संबंधित विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे अग्नि सुरक्षा ऑडिट, आग की जांच, आपातकालीन बचाव आदि, और कार्यात्मक क्षेत्र के विशिष्ट पाठ्यक्रम जैसे कि विमान, मेट्रो, पेट्रोकेमिकल, पावर, रासायनिक और उर्वरक क्षेत्रों आदि में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन। FSDI के इतिहास में एक नया अध्याय वर्ष 2003 को जुड़ा, जब आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। तब से इस संस्था ने आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित कर्मियों को विभिन्न विषयों जैसे कि फर्स्ट एड, CSSR और परमाणु, जैविक और रासायनिक आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया है। FSDI आज अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले देश के एक प्रतिष्ठित फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उभरा है। नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे अन्य देशों के अधिकारियों और कर्मियों ने भी यहां आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस संस्थान ने
देश में एनडीआरएफ, नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य पुलिस बल और अग्निशमन सेवा, रेलवे, संसदीय सुरक्षा और सार्वजनिक उपक्रम जैसे ओएनजीसी, आईओसी, सेल, इसरो, पोर्ट सहित अन्य संगठनों और निजी उपक्रम जैसे इन्फोसिस के लिए फायर और डीएम के कोर्स संचालित किए हैं। 2017 में एफएसटीआई को फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सबसे बेहतरीन इंडिया स्किल एंड टैलेंट FIST फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज मैं मुख्य अतिथि, अन्य विशिष्ट अतिथियों, आगंतुकों, मीडिया के सदस्यों को इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं CISF में समृद्ध करियर के लिए आज पास आउट हो रहे प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। विजेता मध्य से तेज पुरस्कार विजेता दिल में जोश, उत्साह तथा उमंग लिए आदेश अनुसार पंक्तिबद्ध होते हुए कदम विजेता थम, विजेता मध्य से सज्जा, विजेता सैल्यूट, डाउन, विजेता विश्राम। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। Constable 5 Raj Purohit Sur Singh. The best trainee in indoor is Constable 5 Raj Purohit Sur Singh. He secured 90% marks and has been adjudged as the best trainee in indoor. Constable 5 Ankit Kumar. The best trainee in outdoor is Constable 5 Ankit Kumar. He secured 74% marks and has been adjudged as the best trainee in outdoor. और अब बारी है 28वें बैच आरक्षक अग्नि के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी की। आरक्षक अग्नि राजपुरोहित सुर सिंह ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी प्राप्त करेंगे। आरक्षक अग्नि राजपुरोहित सुर सिंह। इन्होंने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 80% अंक प्राप्त किए। विशेष पुरस्कार प्राप्त करेंगे परेड कमांडर आरक्षक अग्नि मुकुल त्यागी। आज के इस भव्य परेड को अपना कुशल नेतृत्व देने के लिए विशेष पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं आरक्षक अग्नि मुकुल त्यागी।
धन्यवाद महोदया। डाउन, विजेता पीछे मुड़, विजेता मध्य से तेज चल। सभी पुरस्कार विजेता पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात अपने निर्धारित स्थान की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ये स्थान उन्होंने कितनी मेहनत और अथक परिश्रम से श्री एस.के. मल्लिक, प्रिंसिपल FSTI, उपस्थित गेजेटेड ऑफिसर्स, स्पेशल इनवाइटीज, नीसा और FSTI के स्टाफ, प्रेस और मीडिया से आए हुए प्रतिनिधि, नीसा और FSTI के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थियों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आज की इस दीक्षांत परेड के पास आउट होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु हृदय से बधाई देना चाहूँगी कि आज आप FSTI के प्रांगण से बाहर निकलकर स्वयं को राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित करने जा रहे हैं। मैं FSTI के प्रशिक्षकों को भी बधाई देना चाहूँगी जिनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज यह शानदार परेड का प्रदर्शन किया गया। मैं RTC मुंडली के प्राचार्य एवं प्रशिक्षकों को भी बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इन प्रशिक्षणार्थियों को सिक्योरिटी कंपोनेंट का प्रशिक्षण यहाँ FSTI के आने से पहले दिया था। आज इस अवसर पर मैं FSTI के भूतपूर्व एवं वर्तमान प्राचार्यों, अधिकारियों, बल सदस्यों का भी सराहना करना चाहूँगी कि आप सभी के योगदान से FSTI प्रतिष्ठा के नए आयाम को स्पर्श किया है तथा देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बनकर अपनी पहचान प्राप्त की है। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि यह संस्थान न केवल CISF की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि FSTI की प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं विशेषज्ञता का लाभ CISF के साथ साथ देश के अन्य संगठनों एवं बलों को भी देता है। मैं आज इस शानदार परेड की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूँगी जहां एक ओर यह प्रदर्शन इस संस्था के ऊंचे प्रशिक्षण मान को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम तथा समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। मैं प्रिंसिपल FSTI एवं अन्य बल सदस्यों को बधाई देती हूं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में इस शानदार प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम किया है। दोस्तों, CISF राष्ट्र का एक प्रमुख केंद्र सुरक्षा बल है जो कि देश की संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष संस्थान, स्टील प्लांट्स, रिफाइनरी, अति संवेदनशील सरकारी इमारतें, ऐतिहासिक स्मारकों इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करता है। CISF का गठन वर्ष 1969 में 3000 बल सदस्यों के साथ हुआ था और वर्तमान में इसकी संख्या करीब 1,80,000 हो चुकी है और यह 346 अत्यंत महत्वपूर्ण इकाइयों में आज के दिन सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अग्नि सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अंग है। इसीलिए भारत सरकार ने 1991 में CISF फायर विंग, जो कि एक टेक्निकल विंग है, का गठन किया।
सीआईएसएफ की फायर विंग ने अपनी यात्रा 50 बल सदस्यों के साथ कोचिन प्लांट से शुरू की थी। अपनी लगन, सटीक प्रयास एवं प्रोफेशनलिज्म के दम पर आज सीआईएसएफ की फायर विंग 102 महत्वपूर्ण संस्थाओं में सुरक्षा के साथ साथ अग्निशमन सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में फायर से होने वाली दुर्घटनाओं की बड़ा खतरा है और यदि समय से अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं को कंट्रोल न किया जाए तो ये आर्थिक क्षति, जनहानि के साथ साथ इसके बहुत ही भयावह दुष्परिणाम हो सकते हैं। सीआईएसएफ की फायर विंग सदैव तत्परता, वीरता और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अग्निशमन सेवाएं प्रदान कर रही हैं और ऐसे सैकड़ों मौके हैं जहां पर समय रहते हुए सीआईएसएफ की फायर विंग ने अग्नि दुर्घटनाओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाया है। यहां तक कि अग्निशमन सेवा दल ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर अपनी प्राणों की आहुति तक दी है। अपनी इन्हीं गौरवशाली अग्निशमन सेवाओं के कारण सीआईएसएफ के फायर विंग को 16 राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इसी वर्ष के सितंबर माह में ओएनजीसी के मुंबई प्लांट में एक फायर दुर्घटना हुई जिसको कंट्रोल करने में सीआईएसएफ की फायर विंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुझे ये बताते हुए गौरव महसूस हो रहा है कि सीआईएसएफ की फायर विंग ने तत्परता एवं वीरता के समय पर अग्नि के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया, साथ ही देश की संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ सैकड़ों हजारों लोग की जान भी बचाई। मैं दुख एवं गौरव के साथ यह भी उल्लेख करना चाहूँगी कि वीरता एवं अदम्य साहस को दर्शाते हुए ओएनजीसी मुंबई की अग्नि दुर्घटना को कंट्रोल करते हुए सीआईएसएफ फायर विंग के 3 बल सदस्यों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश सदैव इन सभी बल सदस्यों के अदम्य साहस एवं वीरता पर गर्व करेगा। मुझे उम्मीद है कि इन बल सदस्यों का बलिदान एवं देश सेवा के प्रति उनका मनोबल एवं उत्साह आज पास आउट होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सीआईएसएफ की फायर विंग अग्निशमन सेवाओं के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं को फायर कंसल्टेंसी की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ राष्ट्र विरोधी एवं असामाजिक तत्व देश में असुरक्षा एवं अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए वह नए नए तरीक़ों को अपनाकर अपने मकसद को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की घटनाएं केवल भारत में ही नहीं परंतु विश्व में भी घटित हो रही हैं। यहाँ पर मैं सऊदी अरब के आरामको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन अटैक कर आग लगाने की घटना का उल्लेख करना चाहूँगी। आरामको ऑयल फैसिलिटी में सुरक्षा की मल्टी लेयर्ड व्यवस्था थी, फिर भी कुछ आतंकवादियों ने ड्रोन के प्रयोग से उस फैसिलिटी के ऊपर टारगेटेड अटैक द्वारा विस्फोट किया, जिससे आग लगने के कारण उस संस्थान को अप्रत्याशित क्षति उठानी पड़ी। संपूर्ण विश्व में करीब 5% तेल सप्लाई इसके वजह से ठप हो गई और इस घटना का उल्लेख मैं यहाँ इसलिए करना चाहूँगी कि सीआईएसएफ आरामको ऑयल फैसिलिटी की तरह देश में महत्वपूर्ण ऑयल फैसिलिटीज़ को सुरक्षा के साथ साथ अग्निशमन सेवाएं प्रदान कर रही है। मैं आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को इस घटना के माध्यम से उनके दायित्व एवं कर्तव्य के प्रति
सजग करना चाहती हूँ कि आपके आगे की सर्विस लाइफ बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संघर्ष से भरी हुई है। आप सभी की सेवाएं देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं एवं ज़रा सी भी गलती से क्षति के साथ साथ भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे देश ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मैं आप सबसे स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का आह्वान करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ दिया गया प्रशिक्षण चुनौतियों का सामना करने हेतु रखी एक नींव के समान है, जिससे आप पूर्ण क्षमता, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और CISF को गौरव प्रदान करेंगे। मैं आज सभी पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे अपने कर्तव्य को नौकरी मात्र न समझें, बल्कि देश सेवा के विशिष्ट अवसर के रूप में स्वीकार करें। यह अवसर चंद सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। आप सभी को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा देश एवं विश्व के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु तैयार रहना होगा। मैं यहाँ पर यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब कर्तव्य निष्पादन के दौरान दृढ़ होने के साथ साथ सदैव उच्चतम विनम्रता एवं शिष्टाचार का भी प्रदर्शन करेंगे एवं कर्तव्य दौरान अपना आदर्श वाक्य सर्विस विद स्माइल रखेंगे। एक बार मैं पुनः प्राचार्य FSTI एवं उनके टीम के सदस्यों, पदक विजेताओं तथा दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देना चाहूँगी तथा आपके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और अंत में राष्ट्र कवि दिनकर की सिपाही नाम कविता की 2 लाइनों से आपका कर्तव्य के प्रति यही संदेश देना चाहूँगी। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, जिसकी है यह दे उसी में इसे मिला मिट जाना है। जय हिंद। Thank you, ma'am. Now I request Sri Saroj Kant Malik, DIG and Principal FSTI, to present a memento to the Honorable Chief Guest as a token of our regard and gratitude. Look. लाइटिंग ना इसलिए फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट हुआ, इसलिए मैंने आके बंद कर दिया। नहीं बंद कर दिया, अब दिक्कत नहीं है। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदया से परेड निष्क्रमण की आज्ञा लेने हेतु मंच की ओर बढ़ते हुए। जय हिंद महोदया। दीक्षांत परेड समाप्त हुई। निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें महोदया। जय हिंद महोदया। निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर पहुंचते हुए निष्क्रमण के लिए अंदर को दाहिने बाएं
और अब शुरू हो गया है दीक्षांत परेड का दिल को छू देने वाला एक मुख्य आकर्षण पील ऑफ यानी कि निष्क्रमण की प्रक्रिया। प्रशिक्षणार्थियों के बुनियादी प्रशिक्षण की आखिरी कड़ी। इस परेड ग्राउंड से बाहर निकलते ही ये समस्त आरक्षक अग्नि अपने कर्तव्य स्थल पर पदस्थापित हो जाएंगे। Band is now playing the tune Odd Lang Syne. Odd Lang Syne is a Scott poem written by Robert Burns, set to the tune of a traditional folk song. It is well known in many English-speaking countries. It is tuned during the celebration of start of the new year at the stroke of midnight. Now the parade is peeling off in slow march towards the dais. Both the flanks are paying compliments to the chief guest and are leaving the parade ground in the service of the nation. मुबारकबाद देते हैं सभी आरक्षक अग्नि जिन्होंने आज देश सेवा की कसम ली। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास जो शपथ इन्होंने कुछ क्षण पहले हम सभी को साक्षी मान अपने गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज एवं बल को साक्षी मान कर दी उसे पूरी तरह अपने लाकर अपने देश और सीएसएफ की तरक्की व खुशहाली में भरपूर सहयोग देंगे। दीक्षांत समारोह के अंत के ये पल और इनका रोमांच किसी भी प्रशिक्षणार्थी द्वारा अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने पर भी नहीं लाया जा सकता। इस समय इनके मन में बनने वाली भावना उत्साह को हम समझ सकते हैं। और अब ये उत्साही नौजवान बढ़ चले अपने राज्य तथा देश की शांति सुरक्षा एवं खुशहाली के राह पर ले जाने इन जवानों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों के अथक प्रयास का नतीजा है ये अनुशासित परेड।
बता रही अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है सीएसएफ फायर विंग के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ सीएसएफ फायर विंग के जवान। फर्स्ट टेंडर के इंचार्ज हैं एसआई फायर राम बाबू, जो कि टेबल पहने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण चेनसॉ, मिनी सर्च कैम का प्रदर्शन करते हुए सीएसएफ फायर विंग के जवान। दूसरी टोली के इंचार्ज एएसआई रवि कुमार तथा उनके साथ है विक्टिम लोकेशन यूनिट, चेनसॉ, मिनी सर्च कैम यूनिट पकड़े हुए सीएसएफ फायर विंग के जवान। किसी भी प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में
बिनु पैसा सब सुख न है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरा अपन तेज संहारो तीनों लोक हाथ में दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलक छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन। सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, तुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
स्वदेशी मार्शल आर्ट है। यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सदियों से सुरक्षित है। यह एक समग्र कला है जिसमें दूसरों पर आक्रमण के साथ ही उससे बचाव की तकनीक भी शामिल है। क्लारीपट्टू तकनीक कदम और मुद्रा का संयोजन है। तमिल और मलयालम में क्लारी का विद्यालय या प्रशिक्षण हॉल है जहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। अघोराणां परो मन्त्र नास्ति तत्त्वं गुरोः परादम् नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव त्राहि मां शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव पाहि मां महादेव जी त्वं पाहि मां शरणागतं त्वं पाहि मां रक्ष मां शिव पाहि मां शिव। अघोराणां परो मन्त्र नास्ति तत्त्वं गुरोः परादम् नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव त्राहि मां शिव रक्ष मां शिव पाहि मां शिव पाहि मां महादेव जी त्वं पाहि मां शरणागतं त्वं पाहि मां रक्ष मां शिव पाहि मां शिव। अघोराणां परो मन्त्र नास्ति तत्त्वं गुरोः परादम् नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है खाद मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है पूरे जोर पर चला है। किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you die. Watching you die. इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण
यहाँ पर राम विजयराज है। आप घबराइए नहीं, जल्दी से जल्दी सीएसआई फायरिंग आपके पास आ रही है। और इसी के साथ सीएसआई के 2 जवान पोर्टेबल कंपैक्ट सिस्टम को लेके फायर फाइटिंग के लिए स्पॉट की ओर बढ़ते हुए। इसी बीच में सीएसआई फायर का जवान प्रॉक्सिमेट सूट पहने हुए जलती हुई आग के बीच में से जाते हुए सीएएफएस का प्रयोग करते हुए सीएसआई के जवान यह आप तीनों घटकों ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल पर एक साथ हमला करता है। पोर्टेबल सीएफएस की सहायता से घटनास्थल पर नीचे फैली हुई आग पर काबू पा लिया गया। और इसी बीच में मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि कृपया सुरक्षित दूरी बनाए रखें। और इसी बीच में डीसीपी टेंडर स्पॉट पर पहुंचते हुए ड्राइवर ने अपनी डायरेक्शन के मद्देनजर टेंडर को सही स्थान पर खड़ा किया तथा शिफ्ट इंचार्ज ने कॉल करने वाले संयंत्र के कर्मचारी से पूछा। सिचुएशन का जायजा लेने के पश्चात उन्होंने रेस्क्यू वर्क के लिए बीए सेट पहने हुए 2 वीरर बल्लर हाउस की ओर भेजे। और इसी के साथ फायर क्रू ने 10.5 मीटर लंबाई वाले एक्सटेंशन लेटर को लेकर रेस्क्यू वर्क के लिए बल्लर हाउस की ओर रवाना। फर्स्ट फ्लोर पर सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन कर रहे कर्मी ने बताया कि उन्हें एक कैजुअलिटी मिली है। एक्सटेंशन लेटर का प्रयोग करते हुए सीएसएफ के कर्मचारी बल्लर हाउस ले जाते हुए और इसी के साथ सीएसएफ की एमएफआर टीम स्पॉट पर पहुंचते हुए CSI, the Asthma Element team, is trained in imparting pre-hospital care to the injured victims at the site of the accident. बल्लर हाउस से सर्च करने के पश्चात एक कैजुअलिटी को रस्से लैडर की मदद से 3 लोग लाइन बनाते हुए ग्राउंड फ्लोर पर सेफ्टी के साथ पहुंचाया गया। और इसी के साथ केबल गैलरी से निकल रहे धुएं को देखकर शिफ्ट इंचार्ज ने बीएसएफ पहनाकर 2 जवान को सर्च तथा रेस्क्यू के लिए केबल गैलरी की ओर भेजा। उनके पास थर्मल इमेजिंग कैमरा तथा विक्टिम लोकेशन यूनिट है जो एक फंसे हुए विक्टिम को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसी के साथ बीएसएफ वेदर ने बैंक ऑफिसर को मैसेज दिया कि उन्हें एक कैजुअलिटी मिली है। We can see the rescuers have shifted the casualty to a medical force responded area. सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने एक और कैजुअलिटी को बचाया तथा उसे पिकअप कैरी बैग की मदद से एमएफआर स्टेशन पर ले जाया गया। कोर प्रेशर हाउस से बॉयलर हाउस की तरफ जाते हुए सीएसएफ फायर का जवान टेरिलियन मेथड का प्रयोग करते हुए We can see the medical force responders are taking care of the extricated victims. They are able to control the critical bleeding and could able to save the life-threatening problems. अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है सेलर क्रॉसिंग मेथड। इस विधि में फायरमैन 2 इमारतों के बीच में बंधे रस्से पर लेटकर दाहिने पैर को मोड़कर आगे की ओर बढ़ता है तथा दूसरी ओर पहुंचने में सक्षम होता है। MFR team is conducting physical examination to find out the life-threatening problems from the extricated victim.
रेस्क्यूअर्स को मिली कैजुअलिटी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण पायलट चेयर पहनाकर कैराबिनर तथा रस्सी की मदद से बॉयलर हाउस से कोल क्रशर हाउस को ले जाया जा रहा है। एक अनकॉन्शियस विक्टिम के लिए पायलट चेयर को बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। कैजुअलिटी लोकेट करने के बाद रेस्क्यूअर पैरेलल क्रॉसिंग की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर आते हुए, और इसी के बीच में बॉयलर हाउस में आग बढ़ गई है, जिसके लिए सीएसएफ फायर के जवान फॉर्म मेकिंग ब्रांच 5X तथा AFFF फॉर्म एक्वस फिल फॉर्मिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फायर फाइटिंग कर रहे हैं। MF-13 is stabilizing the dislocated shoulder and sprinting for the fractures. बॉयलर हाउस में गया हुआ रिस्कर दूसरी टेक्निक मोंकी क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आ रहा है, अपने हाथों तथा पैरों को आगे पीछे करते हुए सेफ प्लेस की ओर पहुंचते हुए, और FMB 5X की मदद से फायर फाइटर्स आग बुझा रहे हैं तथा बॉयलर हाउस में लगे हुए फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की मदद से आग को बुझाया जा रहा है। फॉर्म फ्लडिंग सिस्टम बॉयलर हाउस में एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन रहता है। MF-13 is conducting rapid physical examination by assessing the life-threatening injuries. They are also trying to assess the level of the consciousness and stabilizing the wounds. बॉयलर हाउस से बचाए गए कैजुअलिटीज को कोल क्रशर हाउस से ग्राउंड पर सेफ्टी के साथ पहुंचाने के लिए अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है फ्लाइंग फॉक्स विधि। यदि पर्याप्त समय उपलब्ध हो एवं कैजुअलिटीज ज्यादा हो तब इस विधि का इस्तेमाल कर उन्हें बचाया जाता है। MF-13 members are trained to lift and shift the casualty in neutral inline position with various stretches. अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है फ्लाइंग फॉक्स विधि। स्टॉपर्स की मदद से कैजुअलिटी को बचाया गया तथा सेफ लोकेशन पर पहुंचाने के लिए उसे फुल बॉडी हार्नेस तथा कैराबिनर से अलग करते हुए सीएसएफ के जवान। Now, medical first responder team will stabilize first by applying the C-collar. They will immobilize the patient's condition. जांच पर पता चला कि उसे लेफ्ट पांव में चोट है तथा उसे ह्यूमन क्रच की मदद से MFR स्टेशन पर लेकर जाया जा रहा है। After that, MFR team will stabilize the fractured portion. अनकॉन्शियस कैजुअलिटी को रोलिंग स्ट्रक्चर की मदद से ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाया जाएगा। रोलिंग स्ट्रक्चर एक अनकॉन्शियस कैजुअलिटी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला MFR की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। MF-13 is trained in imparting bleeding control techniques, fracture for the extremities, stabilization, and they could able to stabilize the soft tissues and musculoskeletal injuries. रोलिंग स्ट्रक्चर की मदद से अनकॉन्शियस कैजुअलिटी को ग्राउंड फ्लोर पर सेफ्टी के साथ पहुंचाया गया तथा स्टॉपर्स की मदद से रोलिंग स्ट्रक्चर को रोका गया। अनकॉन्शियस कैजुअलिटी को MFR स्टेशन की ओर लेकर जाते हुए फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए सीएसएफ के जवान। Immediately, MFR team will administer oxygen to stabilize the victim's condition and will ship the patient to the notified hospital. MFR team members will assess the patient's condition with the help of triage. Triage is sort and pick the patients as per the victim's condition. अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया स्लीथिंग मेथड। रेस्क्यूअर्स
सेफ्टी के साथ जमीनी लेवल पर पहुंचते हुए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट डिसेंडिंग टेक्निक है फ्रंट रैपलिंग। इस टेक्निक में रेस्क्यूअर के द्वारा अपना बॉडी वेट आगे की ओर झुकाकर दीवार पर रस्सी पर पकड़कर नीचे की ओर आया जाता है। इस टेक्निक को ऑस्ट्रेलियन रैपलिंग भी कहा जाता है। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है तीसरा डिसेंडिंग टेक्निक सीटेड रैपलिंग। इसमें रेस्क्यूअर अपने बाएं हाथ से रस्सी को छोड़ता है तथा दाहिने हाथ से स्लाइड करते हुए दीवार को धकेलते हुए नीचे आता है। इसे रॉक क्लाइंबिंग या डिसेंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बनवाया जाता है, जिसमें कमांडो ऑपरेशन तथा फायर फाइटिंग ऑपरेशन का मॉडल किया जाता है। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है सीएसएफ फायर विंग में प्रयोग होने वाला कर्टन ब्रांचेस का प्रदर्शन। किसी बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल टावर में लगी आग से सीएसएफ के जवान को उसकी गर्मी तथा रेडिएशन हीट से बचाने के लिए ये कर्टन ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ओर में खड़े होकर सीएसएफ का जवान फायर फाइटिंग कंटिन्यू कर आग के ऊपर काबू पाता है। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं।